اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں آپ آئے ہیں ہمارے پریس کانفرنس کے لیے. میں شروع کرنا چاہوں گا مزاحمت کے ساتھ، کنڈیمنیشن کے ساتھ کہ کل جو گھوٹکی، کراچی اور لاڑکانہ میں دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں کا سخت مزاحمت کرتے ہیں. ہم اپنے شہیدوں کے لیے بھی دعا گو ہے، اور اس وقت جب ایک گلوبل وبا چل رہی ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اتنا خطرناک ہے، اٹ اسپیکس ٹو دیئر انہیومینٹی کہ اس وقت بھی اس قسم کے حملے ہو رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی سخت مزاحمت بھی کرتی ہے. میں جانتا ہوں کہ حکومت سندھ انویسٹیگیٹ بھی کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالی جلد از جلد جو لوگ اس میں شامل تھے وہ بھی پکڑا جائیں گے. اس وقت ہمیں پورے پاکستان کو، ہمارے ریاست کو، ہمارے سوسائٹی کو اپنے عوام کا صحت اور زندگی بچانے میں اپنا کوششیں اور ہمارا پورا فوکس ہونا چاہیے. اور جب ایک ریاست میں، ایک ملک میں اس قسم کا چیلنجز آتے ہیں تو جو حکومت وقت ہوتے ہیں وہ پولرائزیشن اور جو ملک میں فالٹ لائنز ہے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش، یا ان پہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ریکنسیلیشن کے تھرو اور کنسنسس کے ساتھ وہ یونٹی قائم کرتے ہیں تاکہ جو وہ فالٹ لائنز ہے اور جو ایشوز ہے وہ ایگریویٹ نہیں ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جب سے یہ وبا آئی ہے ہر وہ متنازع ایشو چھیڑا ہے، اور ہمارا جو پولرائزیشن کی انوائرمنٹ ہے اس میں اضافہ کیا ہے، کمی نہیں کی. جو یونٹی اور کنسنسس ایک قوم بننے کا جو جنگ کی صورتحال میں یا نیچرل ڈیزاسٹر کی صورتحال میں آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، اس پہ بھی حکومت وقت پی ٹی آئی کی حکومت ناکام رہی ہے. ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ساری سیاسی جماعتوں نے اس پہ تبصرہ بھی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سارے سیاسی جماعتیں نے ریجیکٹ بھی کیا ہے، اور انہوں نے سیاسی طور پہ ریجیکٹ نہیں کیا. انفیکٹ ہم امید کر رہے تھے کہ یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہوگا. ایک پینڈیمک بجٹ میں تو اگر یہ پینڈیمک بجٹ ہوتا تو ساری سیاسی جماعتیں سپورٹ کرتا. جیسے جب آپ جنگ میں ہو اور آپ کا ایک جنگ کا بجٹ ہوتا ہے تو ساری سیاسی جماعتیں سپورٹ کرتے. لیکن یہ جو بجٹ پیش کیا گیا وہ ایسے بجٹ ہے جیسے کرونا کوئی خاص مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کو اس کا کوئی خاص خطرہ نہیں ہے، اور وہ جو وسائل اور ریسورسز جس کو ہمیں اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہمارے عوام کا صحت اور زندگی بچانے کے لیے، اور ان کی معاشی صورتحال کو اس وقت میں وہ تحفظ دینے کے لیے، یہ پرائیورٹیز ہمیں نظر نہیں آئی. ساتھ ساتھ جو ہمارا لوکس کا حملہ ہے جو 25 ایئرز بعد in the last 25 years یہ لوکس کا حملہ سب سے بڑا حملہ ہے، جس کے بارے میں ہم ایک سال سے پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی سطح پہ اور حکومت سندھ بھی وفاقی حکومت سے اور پی ٹی آئی حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس کو سیریسلی لے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرے. اس ایشو کو بھی نظر انداز کیا، اس ایشو کو نہ ان لوکس کا مقابلہ کرنے کے لیے، نہ ہی ہمارا ذرائع معیشت اور ہمارا کسان کو وہ مدد پہنچانے کے لیے کافی وسائل رکھے گئے تھے. اور یہ بہت مشکل ایشو ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت
इस वबा का मुकाबला करें, जो कि हर सूबाई हुकूमत अपने तौर पे कोशिश कर रही है अपना सालाना सेहत की बजट से, और उस सेहत की बजट में अगर उन्होंने अपने वसाइल से इजाफा किया। लेकिन जहाँ कि ये एक पैंडेमिक है, और एक पैंडेमिक या एपिडेमिक वफाकी आपकी अपना आइन के तहत वफाकी हुकूमत का बहुत अहम जिम्मेदारी होता है। हम उम्मीद कर रहे थे कि हर सूबा के लिए एक हेल्थ पैकेज दिया जाता, एक कोविड पैकेज दिया जाता, ताकि उनके सेहत के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें वो सपोर्ट मिलता, उनको वो जो उनको इजाफा करना है टेस्टिंग कैपेसिटी से लेके हेल्थ केयर कैपेसिटी तक। और हम जानते हैं कि हमारा हेल्थ केयर कैपेसिटी, हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी उस तेज़ी से इजाफा नहीं कर पा रहे थे जिससे ये वबा स्प्रेड हो रहा था। लेकिन अब भी वफाकी हुकूमत ने उस सपोर्ट सूबाई हुकूमतों को नहीं दी गई। हम जो उनका नाम का PSDP में पैसा रखा गया है कोविड के लिए, 70 बिलियन रुपीस, वो कहते हैं हमने कोविड के लिए रखा, लेकिन जब आप वो फाइन प्रिंट पढ़ते हो, अब उसमें आप देख लेते हो तो उसमें वो कोविड के लिए नहीं, वो आपका सेहत का निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए नहीं, ये उनके अपने MPAs और अपने MNAs के इलेक्शंस के स्लश फंड है। ये आपका जो 70 बिलियन रुपीस कोविड के लिए इस्तेमाल होना था, सेहत के फैसिलिटीज में इजाफा करने के लिए, आपके डॉक्टर्स और नर्सेस को फैसिलिटेट करने के लिए, आपके अवाम के सेहत और ज़िंदगी बचाने के लिए, या उनको कोई रिलीफ पहुंचाने के लिए, वो पैसा उनके MNAs के कॉन्स्टिट्यूएंसी का सड़क बनाने के लिए, उनका MNAs की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई गटर लगाने के लिए, उनका MNAs की कॉन्स्टिट्यूएंसी में तरक्याती मंसूबे करने के लिए, ये जो पैसा है वो इस काम में लगाया गया है, जिसका हमें नेशनल असेंबली में ने भी मज़ामत किया और मैं आपके सामने भी मज़ामत करता हूं। हम तो 2 साल से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें वफाकी हुकूमत को पानी के मंसूबे पे खर्च करना चाहिए, वफाकी हुकूमत को रोजगार दिलवाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे हैं उन पे पैसा रखना चाहिए, और वो नहीं रखते थे। फिर जब ये वबा आया तो हम कहना शुरू कर दिए कि हमारे जो सेहत का निज़ाम है आप उसको सपोर्ट करें, लेकिन हमारा सेहत को निज़ाम को सपोर्ट करने के बजाय आप इस किस्म के तरक्याती मंसूबे बनाने शुरू कर दिए हैं, जो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और सियासी अप्रोच है एक बजट बनाने इस पैंडेमिक में, इस जंग की सूरत हाल के दौरान, और उसके ऊपर जो हर सूबा के साथ नाइंसाफी हुआ है, जहां तक उनका शॉर्टफॉल्स है वफाकी हुकूमत का, सिंध का 229 बिलियन रुपीस। इस वक्त एक पैंडेमिक के दौरान जब आप कह रहे हो कि सूबाई हुकूमतें मुकाबला करें, जब आप कह रहे हो कि हम अपना सूबाई बजट को इस्तेमाल करें, हम अपना सालाना सेहत का बजट से ग्लोबल वबा का मुकाबला करें, ऊपर से हम उस बजट में आप 229 बिलियन रुपीस कम देते हो। और ये नाइंसाफी सिर्फ सिंध के साथ नहीं हो रहा है, पंजाब को भी कम मिला है, पंजाब को भी 400 बिलियन कम मिला है। बाकी सूबों के साथ मैंने जिक्र किया था अपना नेशनल असेंबली स्पीच में, ये वक्त था सूबाई हुकूमतों को सपोर्ट करने का, ये वक्त था आप इन तारीखी चैलेंजेस जो हमारे मुल्क में शायद कभी कोई चैलेंज इतना बड़ा नहीं रहा जितना इस वबा को संभालने और हमारा मुल्क के अवाम की सेहत और ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने का है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वफाकी हुकूमत का बजट, PTI की बजट हमारे अवाम का सेहत और ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती है। हमारा PTI की हुकूमत की बजट हमारा अवाम की मुआशी सूरत हाल को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती। इस मुश्किल वक्त जब उनको बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में और सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में इजाफा करना चाहिए था, उन्होंने 34 बिलियन रुपीस
کم پیسہ ڈالا ہے سوشل پروٹیکشن کے لیے. اس وقت جب ان کے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، نہ صرف ہمارا غریب تر عوام کو کیش ٹرانسفر کی سپورٹ ملنا چاہیے، مگر اس وقت ہمارا ورکنگ کلاس کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمارا لوور مڈل کلاس کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ اس حکومت ایٹ لیسٹ 15 to 20 ملین ہاؤس ہولڈز کے لیے کیش ٹرانسفر کی بندوبست کر دیتی. اس صورتحال میں، ان صورتحال میں جب اب کووڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں، مگر نہ ریلیف پہ، نہ معیشت پہ انہوں نے ڈلیور کیا ہے، نہ آپ کا صحت اور زندگی کا تحفظ کروانے کے لیے انہوں نے ڈلیور کیا ہے، اور نہ آپ کا فصل کا، آپ کا فوڈ سیکیورٹی کی تحفظ کروایا ہے. جو آپ کی صوبائی حکومت نے اس ماحول میں جب آپ کو 229 بلین روپیز کا مل رہی ہے، جب آپ کی جو ہم لمیٹڈ ہے، ہم صرف سیلز ٹیکس جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت بزنسز کام نہیں کر رہی. ہم کہاں سے سیلز ٹیکس، ہمارا اپنا ریونیو کو بھی درج کا ملا ہے کووڈ کی وجہ سے. لیکن ان مشکل صورتحال میں بھی سندھ حکومت کی جو بجٹ ہے، یہ عوام دوست بجٹ ہے، یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہے جس میں ہم نے صحت کو اور ریلیف کو پرائیورٹی دیا ہے. کم وسائل بے شک ہے، کم ریسورسز بے شک ہے، ہمارا ایکسپیکٹیشن سے بھی کم ہے، ہمارا حق سے بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنا صحت کی بجٹ میں تاریخی اضافہ کیا تھا. نہ کافی اضافہ ہے، اور پیسہ ہوتا ہم اور اضافہ کرتے. اس وقت یہ آپ کی یہ ساری صوبائی حکومت، پوری ملک کا سب سے اہم پرائیورٹی ہونا چاہیے تھا. اور میں فخر کرتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اپنا نہ صرف ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کیا ہے، مگر ہمارا تنخواہ میں، ہمارا پینشنز میں، جب آپ اتنے معاشی مشکل صورتحال ہیں، جب پاکستان کے عوام نہ صرف اپنا صحت اور زندگی کے لیے پریشان ہے، مگر اپنا معاشی صورتحال کے لیے بھی پریشان ہے، جب ہمارے پاس ریاست پاکستان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنا بزرگوں کو کوئی خاص ریلیف دیں، ہم اپنا عوام کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا یوٹیلیٹی سٹورز کے علاوہ کوئی ریلیف پہنچانے کا طریقہ کار ہی نہیں ہے، تو میں فخر کرتا ہوں کہ سندھ حکومت نے ان مشکل صورتحال کے باوجود ہمارا جو لوگ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کا خیال رکھتے ہیں، اور اس وقت بھی مشکل صورتحال کے باوجود ان کا سیلریز میں اضافہ ہوا ہے، پینشنز میں اضافہ ہوا ہے، ہیلتھ کیئر کو پرائیورٹی دیا گیا ہے، مختلف ریلیف کے منصوبے غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کا جو پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام ایسے چل رہا ہے، اس میں کٹوتی نہیں اضافہ کیا گیا ہے. آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں غریب کسان کو کم پرائس میں سیڈ پہنچانے کے لیے، غریب کسان کو کم پرائس میں فرٹیلائزر پہنچانے کے لیے لون فیسلٹیز آپ کے ان کے لیے زراعی لون فیسلٹی اسمال بزنسز کے لیے بھی اور زراعی سیکٹر کے لیے بھی اس قسم کے جو سپورٹ ہے یہ ان مشکل حالات میں ہمارا عوام کے لیے بہت ضروری ہوگا. جو بے روزگار ہوتے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بے روزگاری بڑھتا جائے گا، ان کے لیے جو سٹائپنڈ کا ایک فیسلٹی ہے بجٹ میں، وہ فائدہ مند ہوگا کہ آپ کے وسائل کم ہونے کے باوجود، آپ کے ریسورسز اسٹرینگل ہونے کے باوجود، آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو نہ ملنے کے باوجود، اپنے ان پرائیورٹیز کو رکھے. آپ کی عوام کو یہ دکھایا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے آپ ان کا صحت، ان کے زندگی کا تحفظ دلوانے کے لیے اور ان کو ریلیف پہنچانے میں آپ نے یہ کمٹمنٹس رکھے ہیں. اب میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا. جی آواز آ
कि आयु को अगर छेड़ा गया तो जेलों में भी जाएंगे, जेल भरेंगे। आयु अपनी जगह मुकद्दस, लेकिन अवाम का जान आप बहुत अजीब है। आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल में जब अमरीकी अवाम निकल सकती है तो पाकिस्तान की अवाम इस सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ नहीं कर सकती? आपका सवाल की बहुत अहमियत है। मैं इसी इन किस्म के फॉल्ट लाइन्स की तरफ इशारा देता रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया भर में जो रियासतें हैं और हर जगह जो एक ज़िम्मेदार हुकूमत होता, जहाँ ज़िम्मेदार क़यादत है, वो नेशनल क्राइसिस के मौके पे कंसेंसस और यूनिटी इसलिए पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हर ममालिक में फॉल्ट लाइन्स हैं, हर ममालिक में इश्यूज हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, नाइंसाफियाँ हैं, मुश्किलात हैं अवाम के लिए, गरीब के लिए, अक़लियतों के लिए। लेकिन क्राइसिस के दौरान जब मुल्क की क़यादत एक हो जाता है, जब आप एक कौम बन के इन क्राइसिस का मुकाबला करते हो, तो वो जो आपके फॉल्ट लाइन्स हैं, आप सब जो है थोड़ा सा वो फोकस पूरा का पूरा नेशन का उस बीमारी का और आपके अवाम की सेहत और ज़िंदगी बचाने में टाइम गुजारा जाता है। यहाँ पीटीआई हुकूमत जो है वो उनको बहुत, दे शुड बी वेरी थैंकफुल, दे शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि दे हैव एन ऑपोजिशन इन पाकिस्तान। इसलिए जहाँ फॉल्ट लाइन्स जितने पाकिस्तान में हैं वो अमेरिका से तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब से ये वबा पहुंचा है, मैंने पहला स्टेप ले लिया था। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जो एक्टिविटीज है खत्म कर दी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का बरसी पोस्टपोन कर दिया। हमारा जो जलसा होता है गरी खुदा बख्श में, हमारा सियासी एक्टिविटी शुरू हो रहा था पंजाब में, पोस्टपोन कर दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हर सियासी जमात में जो पार्लियामान में है और पार्लियामान के बाहर है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया हमने सियासत नहीं की। जब मैं इंटरव्यूज के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान वजीर आजम के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ सियासी बयान, सियासी सवाल किए जाते थे, मैं साइड स्टेप करता था, इसलिए कि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो हमारे हर सूबा में, बलूचिस्तान से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक हमारे पास चैलेंजेस हैं और हमें सब मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए था। लेकिन उसके जवाब में हमें क्या मिला? उसका जवाब में वजीर आज़म ने सियासत की, उसका जवाब में उनके अपने स्पोक्स पर्सन्स ने मेरा हुकूमत के वजीर आला से लेके वजीरों तक जो अपने जान को खतरा में डाल रहे थे, उनको तकीद को निशाना बनाया। उन डॉक्टर्स को, उन नर्सेस को जो आपका सेहत और ज़िंदगी बचाने के लिए अपने जान को खतरा डालते हैं, उन पे भी पीटीआई की तरफ से सियासी बयानबाजी हुआ। वजीर आज़म का जो पहला ट्रिप होता है इस सूबा में इस वबा के बाद, वो आके लड़काना में होता है, गैर सियासी ट्रिप, मगर फिर भी एक पार्टिसान पॉलिटिक्स उछालने की कोशिश। इस वक्त पाकिस्तान में आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अगर एनएफसी अवार्ड पे, अगर 18th अमेंडमेंट पे, अगर जमहूरियत पे, अगर टारगेट किलिंग्स पे, अगर मिसिंग पर्सन्स पे इस वक्त इस मुल्क के अवाम बाहर निकलते हैं, अगर उनका मुआशी सूरत हाल पे, इन्फ्लेशन पे, जिस तरीके से उनका पैसा दूसरी जगह जा रहे हैं, इस वक्त दूसरा जगह खर्च हो रहे हैं, मगर उनका सेहत और जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने में खर्च नहीं हो रहा, उनको आपका सोशल जो बेसिक इकोनॉमिक राइट्स है उसको दिलवाने में नहीं खर्च हो रहा। अगर इन चीज़ों पे हम बाहर निकलते हैं इस वक्त, तो कोई नहीं संभाल सकेगा। जो भी हुकूमत में इस वक्त होता, उनको बड़ा सोच समझ के, कौमी सियासत करके, यूनिटी के साथ आगे चलना चाहिए। वरना अमेरिका में जहां
ایک ان کا اقلیت کے تعلق رکھنے والے پولیس کے ہاتھوں قتل ہوا، پورا ملک احتجاج کر رہا ہے. یہاں اس قسم کی چیزیں ہوتے رہتے ہیں. ہمارے بہت سے فالٹ لائنز ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنی رویہ کو تبدیل کرنا چاہیے، اور ان چیلنجز کو، سیریسنس کو سمجھنا چاہیے، اور اس سیریسنس کے ساتھ ان چیلنجز کو سنبھالنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ 229 ارب روپے کی بات کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے. یقیناً اس کے لیے آپ نے قومی اسمبلی اور دیگر فورم پر بھی بات کی ہے، جن کا ہم فیصلہ کرتے رہتے ہیں. لیکن کیا عدالت، سپریم کورٹ جو سب سے بڑی عدالت ہے، اگر آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا تو کیا آپ عدالت جانے کا بھی کوئی آپشن استعمال ان فیوچر کر سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کا کل ایک فیصلہ آیا ہے، تو اس کے حوالے سے اس وقت آپ کا کیا موقع ہے؟ پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ جہاں تک آپ کا معاشی حقوق ہے، ہم چاہیں گے کہ ہم اصولی طور پہ سیاسی فورمز پہ، چاہے پارلیمنٹ ہو، اور پارلیمنٹ وہ واحد ادارہ ہیں جو اس ملک کی معیشت کا فیصلہ لے سکتی ہے، وہاں یہ حل ہو. لیکن جب غیر آئینی سٹیپس لیے جاتے ہیں، جب این ایف سی ایوارڈ کے کمپوزیشن کے غیر آئینی ہوگا، جب این ایف سی ایوارڈ کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی ہوگا، اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت ان ایلیگیلٹیز کو، اس ان کانسٹیٹیوشنل ایکسس کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے وہ ہمیں وہ جواب نہیں دیتے، تو ہم بھی مجبور ہو جائیں گے، اور ہمیں اس ایشو کو عدالت میں لے کے جانا پڑے گا. ہم انشاءاللہ تعالی جلد، جیسے ہی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے، انشاءاللہ تعالی سب دعا گو ہے، تو بطور لیڈر آف دی اپوزیشن وہ آل پارٹیز کا ہمارا آل پارٹیز کانفرنس بلائے گا، جس پہ ہم این ایف سی ایوارڈ بھی ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پھر ایک پورا اپوزیشن کا موقف آپ کے سامنے آئے گا. ویسے اپوزیشن جماعتوں نے صوبائی سطح پہ اس پہ کافی ملٹی پارٹی کانفرنسز اس وقت تک رکھے ہیں. جہاں تک قاضی فیض عیسیٰ ریفرنس کا سلسلہ ہے، اس پہ بھی متحدہ اپوزیشن نے، یونائٹڈ اپوزیشن کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کل، جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا تھا. آئی تھنک وہ کافی تفصیل کا سٹیٹمنٹ تھا. ایک شارٹ ٹرم امیجیٹ جو وکٹری ہے وہ اس کا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کافی دیر سے ہمارا موقف رہا ہے کہ کرپشن موجود ہے پاکستان میں، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے موجود ہے، لیکن جو ہمارا کرپشن کے خلاف مہم شروع ہو جاتے ہیں، وہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں، کرپشن کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، ان کا ایک دوسرا مقصد ہوتا ہے. اور ہمیں ان دونوں چیزیں کو سنبھالنا پڑے گا. ایک طرف سے ہمیں کرپشن کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ہمیں جو نہ صرف بیوروکریسی میں، سیاستدانوں میں، مگر ہاں عدلیہ میں بھی کرپشن کے ایشوز ہوں گے، ہمیں یہ ایڈریس کرنا پڑے گا ایک جمہوری ٹرانسپیرنٹ طریقہ جس سے فیصلے ہوتے ہیں اور سب وہ فیصلے قبول بھی کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمیں اس کو بھی ونس اینڈ فار آل اس کو بھی سیٹل کرنا پڑے گا، اس سائڈ کو جو کہ وہ وکٹمائزیشن کا سائڈ ہے، جو سائڈ ہے کیسز کو استعمال کر کے کسی کو پریشر ڈالنے کے لیے. جب تک وہ جاری رہے گا تب تک آپ کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہو. ہمیں ہمیشہ کے لیے، اور میں اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ یہ اس ایشو کو اٹھائے. جو بدنیتی سے یا کرپشن یا دوسرے کیسز بناتے ہیں سیاستدانوں کو، ججز کو، سول سوسائٹی کے ممبرز کو اسکرپٹ پہ لے آنے کے لیے، اس قسم کے جو انتقامی کیسز ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا پڑے گا اگر ہم
करप्शन का खात्मा चाहते हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है इसी जस्टिस फैज़ ईसा केस के मुतालिक कि अगर जज के ऊपर रेफरेंस बन सकता है इतना बात पे, तो फिर जो फैज़ ईसा साहब ने इंफॉर्मेशन लेकर आया है दूसरों के हवाले से, वजीरों का शाहिद नाम भी उसमें हो, उस पे भी JIT बने। और जो सबसे संगीन बात है, जो स्पाइंग ऑन जजेस पे बहस सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पे भी चले हैं, ये एक बहुत सीरियस इशू है और इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को JIT बनाना चाहिए। ये मेरा वकास का है। सॉरी, मास्क सब पहने हुए हैं तो थोड़ा सा नहीं, हम एक तो फर्क है, NFC एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोनेंट है, वो ना कोई बेस है ना कोई, देयर इज नो डिबेट, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस पर आपको अमल करना ही करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस किस्म का तहफ़्फ़ुज़, जैसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ NFC अवार्ड के लिए है, हम इस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ PFC को भी दे दें। इस वक्त आपका इस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ PFC के लिए नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि PFC को भी वो तहफ़्फ़ुज़ मिले और साथ साथ ये मुतालबा करते हैं कि पूरा NFC अवार्ड दिया जाए। इसलिए अगर पूरा NFC अवार्ड नहीं दिया जाएगा तो फिर PFC में क्या दिया जाएगा? PFC तो आपका NFC शेयर से बनेगा ना। और मैं चाहूंगा, मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट को, हर डिवीजन को उनका हक मिले, लेकिन अगर आपको वो रिसोर्सेस ही नहीं दिए जाएंगे तो नाइंसाफी होगा। और ये जो नाइंसाफी है, जो ऊपर से शुरू होता है, निचले सतह तक पहुंचता है। अगर आपके लोकल गवर्नमेंट के मेंबर्स आपका कचरा नहीं उठा सकते हैं, आपका सड़क और गटर नहीं बना सकते हैं, वो इसलिए कि उनको वो वसाइल नहीं दिया जा रहा है, उनको उनका जो उनका हक है वो नहीं दिया जा रहा है ना। इनका हल दो चीजें हैं, एक तो हम अपना हक के लिए मुतालबा करता रहें, हर फोरम पे लड़ते रहें, लेकिन साथ साथ हम अपना जो रेवेन्यू शेयर है उसमें हमें इजाफा करना पड़ेगा। इस वक्त तक सिंध हुकूमत ने 2009 से लेके आज तक 7 टाइम्स हमने इजाफा किया है हमारा रेवेन्यू में। किसी और सूबाई हुकूमत ने यह इजाफा नहीं किया, वफाकी हुकूमत ने किया, ये सिर्फ सिंध हुकूमत करती रहती है। अपना रेवेन्यू शेयर में हम इजाफा करते हैं। जब हमने ये डेवोल्यूशन का, 18th अमेंडमेंट का और NFC अवार्ड का सब कुछ हुआ, हमने सूबाई हुकूमतों को ये पावर्स दिए, हमने सूबाई हुकूमतों को ये वसाइल दिए, और साथ साथ हमने लिंक किया था कि आप अपना टैक्स रेवेन्यू में इजाफा करेंगे, टैक्स टू GDP रेशियो में आप इजाफा करेंगे। इसमें सिंध ने इजाफा किया, इसमें बलोचिस्तान ने इजाफा किया, इसमें पंजाब ने इजाफा किया। अगर इजाफा नहीं हुआ है तो वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ है। तो वो ना सिर्फ आपको अपना शेयर नहीं दे रहे हैं, वो अपना जो काम है, जो टैक्स रेवेन्यू जनरेशन है, उसमें वो अपने टारगेट्स मिस कर रहे हैं, जिससे सूबाई हुकूमतों को के साथ नाइंसाफी हो रहा है, और उसके नीचे लेवल जो है वो लोकल गवर्नमेंट है, तो उनके साथ भी एक किस्म का नाइंसाफी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दाइर साहब, सॉरी। हाँ,
जहाँ तक NIC, let me start with the doctors. Doctors, nurses, paramedical staff, सबका अवली तरजीह है। और जो सिंध हुकूमत की बजट है, जैसे मैंने कहा, कम वसाइल होने के बावजूद, रिस्ट्रेंट्स होने के बावजूद, आपका जो बजट है 90% से ज़्यादा हम सैलरीज़ में और तनख्वाह में और इन चीज़ों में खर्च करते हैं। ऊपर से कम पैसा आता है, लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद हमने ना सिर्फ हुकूमत के एम्प्लॉइज़ का सैलरीज़ में इजाफा किया, पेंशन्स में इजाफा किया, रिस्क अलाउंस सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बंदोबस्त किया है। ना सिर्फ उनका जो कुछ हर जगह चैलेंज है ना सिर्फ आइसोलेशन वार्ड में भी चैलेंज है, लेकिन हॉस्पिटल्स में भी चैलेंज है। तो रिस्क अलाउंस भी दिया, और हम अपने महदूद वसाइल से अपना मुश्किलात के बावजूद उनको वही प्रायोरिटी देना चाहते हैं, और समझते हैं कि उनको ना सिर्फ वो फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन वो सिक्योरिटी की सपोर्ट। आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ फ्यू डेज अगो एक और सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट हुआ था जो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हमारा सेहत के निज़ाम को मुकम्मल सपोर्ट देना चाहिए, और वो स्टेक होल्डर्स हैं, वो हर फोरम पे हमारे सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने माजी में उनके साथ भी एक होके काम किया है। हाँ, अब बजट सेशन इंशाल्लाह का हाइट हो रहा है, और सीएम साहब का एंगेजमेंट जो है वो जारी रहेगा, और हम मिलके ना सिर्फ ये बजट के फैसले, लेकिन जो हमारे इस वबा का मुकाबला करने के लिए हम मिलके इनका मुकाबला करेंगे। JPMC, NICVD, NICH, साउथ पंजाब का शेख जायद हॉस्पिटल, जो वफाकी हुकूमत ने एक पैंडेमिक के दौरान एक हमला किया है, हमारा हॉस्पिटल्स पे हमला किया है। इनका जब भी मैं समझता हूं कि और नहीं गिर सकते हैं तो मजीद गिरते हैं। ये अपना ही कैबिना के फैसले, PTI की अपनी कैबिना की फैसले के खिलाफ है। इसलिए PTI की अपना कैबिनेट का रेजोल्यूशन मौजूद है, जहां उन्होंने कहा कि ये सूबाई हुकूमतें के हैं और सूबाई हुकूमतों ही इनको चलाएंगे। तो ये उनका वादा था, उनका स्टेटमेंट था, लेकिन बजट में एक सियासी हमला किया गया इन इदारों पे। एक तो जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया कि जितना पैसा सिंध हुकूमत ने 3 हॉस्पिटल्स इन 6 में से के लिए रखा है, वो वफाकी हुकूमत के 6 हॉस्पिटल्स के बजट से ज्यादा है। वफाकी हुकूमत हमारे इन हॉस्पिटल्स को काफी देर से चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक पैंडेमिक के दौरान इस किस्म का तमाशा करना उनके बारे में ज्यादा, इट स्पीक्स मोर अबाउट देम देन इट डज अबाउट अस। अगर इस वक्त NICVD, JPMC और NICH वाकई वफाकी हुकूमत के पास चले जाते हैं, तो एक ये टीचिंग हॉस्पिटल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो लिंक्ड है, वो लिंक ख़त्म, वो टीचिंग हॉस्पिटल ख़त्म। हमारा जो नर्सेज और डॉक्टर्स में इजाफा की सख्त ज़रूरत है, जो हम इन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से करवा रहे हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। जो पैसा उन्होंने रखा है वो नाकाफ़ी है। तो मतलब जो मुफ्त इलाज हो रहा है, जो डॉक्टर्स को प्रीमियम सैलरी मिल रहा है उनकी सबसे बेहतर केयर निकालने के लिए, वो सब कुछ भी ख़त्म। शायद कुछ डिपार्टमेंट्स भी बंद करना पड़ेंगे, इसलिए पैसा, जैसा आपने खुद कहा, इन सारे हॉस्पिटल्स के लिए नाकाफ़ी है। ये मैंने नेशनल असेंबली में भी चैलेंज किया, मैं आपके सामने चैलेंज करता हूं, मैं PTI को चैलेंज करता हूं। अगर ये चैलेंज जीत जाते हैं तो ले ले हमारे हॉस्पिटल्स, लेकिन आप मुझे दिखाएं, एक दिखाएं, हुकूमत का हॉस्पिटल दिखाएं। NICVD का मुकाबले में आपने एक, NICVD में आप गिन नहीं सकता हूं कि कितने इदारे NICVD के हमने इस सूबा भर में खड़े किए हैं। मैं चैलेंज करता हूं PTI हुकूमत को, एक दिखाए, एक हुकूमत का हॉस्पिटल दिखाए जो NICVD का मुकाबला कर सकता है।
फिर आप अपना लेडी रेडिंग हॉस्पिटल जो इमरान खान का रिश्तेदार चला रहा है उसका जेपीएमसी से मुकाबला करें, और फिर आप एक हॉस्पिटल दिखाएं, एक हॉस्पिटल जो एनआईसीएच का मुकाबला कर सकते हैं, जो मेरा चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेरा चिल्ड्रन इमरजेंसी वार्ड से मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, एनआईसीवीडी का एक कार्डियक एग्जाम्पल, जेपीएमसी आपका रेडी लेडिंग हॉस्पिटल से कंपेयर करें और एनआईसीएच, तो फिर मैं आपका ये मुतालबा मान देता। सच ये है कि इन्होंने एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया है। हमारे ये इदारे आलमी सतह पर अब मुकाबला कर रहे हैं। एनआईसीवीडी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुफ्त दिल के प्रोसीजर्स करते हैं, फैक्ट, फुल स्टॉप। ये कोई और ना हुकूमत पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर ये नाइंसाफी है, तमाशा है, हम इनको छीनने नहीं देंगे, लेकिन इंसानियत के खातिर इनको इस किस्म का नाइंसाफिया इस वक्त नहीं करना चाहिए। जी संजय, शुक्रिया संजय। कहाँ से शुरू करूं, कौन सा यू टर्न से, कौन सा बात से, कौन सा बयान से? सैलरीज और पेंशन्स का ये डिबेट हो सकता है कि कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है। मैं कहूँगा हाँ, आप कहेंगे ना। लेकिन इस वक्त जब आप एक पैंडेमिक में हैं, एक पैंडेमिक में जब मुआशी सूरत हाल भी मुश्किल है, जब आप चाहते हो कि बुजुर्ग जो है वो घर में रहें, बुजुर्ग आपका हाई रिस्क पॉपुलेशन है, तो मैं समझता हूं इस वक्त में बहुत इसका ये जो फैसला लिया गया है, ये जो डिसीजन लिया गया है, ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त। ना सिर्फ आपका बजट बनाने के लिए या बुक्स बैलेंस करने के लिए, लेकिन आम आदमी का जिंदगी और सेहत बचाने के लिए, हमारा बुजुर्गों को तहफ़्फ़ुज़ इस ग्लोबल वबा के दौरान देने के लिए। तो मैं बिल्कुल समझता हूं कि इस वक्त जो भी आप समझते हो कि कम लोग होना चाहिए एम्प्लॉयड हुकूमत की तरफ से, आप समझते हो कि उनका तनख्वाह कम होना चाहिए, इस वक्त हम वो डिबेट ना करें। इस वक्त एक वबा के दौरान बिल्कुल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब तो मैं समझता हूं कि फोकस शायद ज़्यादा नहीं कर रहा होगा NCOC की मीटिंग्स में, या पता नहीं क्या, इसलिए मुझे हर NCOC की मीटिंग का पता है, मुझे हर NCOC की बारे में ब्रीफिंग दी जाती है, मुझे पता है कि किस तरीके से सिंध हुकूमत अपना इश्यूज वहां उठाते भी हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और जिस आज़ादी के साथ और ज्यादा खुद मुख्तारी के साथ हम अपना फैसले पहले से लेते थे, फिर हम इस फोरम में आए और सब मिलकर कंसेंसस के साथ कोशिश किया। लेकिन अफसोस के साथ वहां भी हम कंसेंसस बनाते हैं, NCOC में कंसेंसस होता है, अगर इमरान को पसंद नहीं तो वो अदालत के थ्रू या इंतजामिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू उन फैसले को भी वो अंडरमाइन करते हैं। साथ साथ उस फोरम पे हमारा एक नुमाइंदा है, PTI का वज़ीर आज़म है, उनके एलाई के वज़ीर बलूचिस्तान का CM भी है और उनका अपना CM भी है। वो कौन सा कंसेंसस? तो आप चाहते हो कि जो आप चाहे हो जाए और फिर उसके बाद मैं समझाने की कोशिश ना करूं कि फैसले बेहतर कैसे हो सकता था। मैं समझता हूं कि इनको ये बड़े गैर संजीदगी के साथ इश्यूज को उठाते हैं। और अब आपके सामने रिकॉर्ड है, आपके सामने मेरे बयानात हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है और खान साहब के हैं। खुद कंपेयर करें कौन सही था, कौन गलत था, दुनिया में क्या
کہا جا رہا ہے، سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں، طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ میں مطالبہ کرتا ہوں، اگر دا پی ٹی آئی اگریز، کہ آپ کے جو سارے پروسیڈنگس ہیں نا این سی او سی کا اور این سی او جو کمیٹیز ہے، یہ تو ریکارڈنگس ہیں، موجود ہوں گے، آپ ریلیز کر دیں، میڈیا کو دکھا دیں کہ شروع دن سے کون کیا کہہ رہا تھا اور اب کون کیا کہہ رہا ہے. خود آپ اندازہ کریں کہ کون سچ کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے. 18th امینڈمنٹ اور این ایف سی پہ وزیر اعظم صاحب نے سندھ تشریف لے آ کے کچھ باتیں کی ہیں جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب نے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو عامر کی سے کمپیئر کیا ہے. ہمارا سی ایم صاحب اتنا بڑا عامر ہے کہ عمران خان آتا ہے اور ملتا بھی نہیں. اتنا بڑا عامر ہے کہ جب ہم نے اپنا آئی جی لگانا ہے تو پوچھ کے لگانا ہے، جب ہم نے بجٹ بنانا ہے تو آپ سے پیسہ لے کے بنانا ہے. ہمارا حق پورا نہیں مل رہا ہے لیکن ہم اتنے بڑے عامر ہیں. تو یہ جھوٹ ہے. اور یہ جو 18th امینڈمنٹ کے خلاف اور این ایف سی کے خلاف اب خان کی جو باتیں ہیں وہ کھل کے سامنے آئی ہیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا، جب سے ان کا سلیکشن ہوا میں تب سے کہہ رہا ہوں، اور اب وہ آپ کے سامنے بھی کہتا ہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے، این ایف سی کے خلاف ہے. مگر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو ہم نے 18th امینڈمنٹ میں بحال کیا، اور 1973 کانسٹیٹیوشن پاکستان کو صوبے کو جوڑتے ہیں، اور ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو خان صاحب کی بیانات جو ہے وہ آئی تھنک کہ پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ جہاں وہ تھے اس کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کون سا صوبہ سے وہ کون سا بات کر رہا ہے. سندھ میں آ کے آپ 18th امینڈمنٹ اور این ایف سی ووٹ کا وزیر اعظم مخالفت کرتا ہے. وہ اس شہر سے لڑکانہ جاتا ہے جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی اس آئین کو تحفظ کرتے ہوئے، جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال کی جد و جہد کے بعد شہادت قبول کی اس آئین کا تحفظ کرتے ہوئے، اور پھر ہمارا 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات کرتا ہے. میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ان سے جو ان کے ساتھی ہیں، جو نام نہاد قوم پرست حقیقت میں مفاد پرست ہے، کہ کیا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ 1973 کانسٹیٹیوشن غلط ہے، ڈیولوشن غلط ہے، جو ناانصافی این ایف سی ایوارڈ کے تھرو سارے صوبے کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہے یا نہیں ہے؟ اور جو ان کے اتحادی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اگر وہ اپنا دھرتی کے ساتھ غداری نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو جلد از جلد اس حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرنا چاہیے. تھینک یو.
शुक्रिया। जहाँ तक अख्तर मैंगल साहब की क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव स्टेप है और मैं अख्तर मैंगल साहब को बलूचिस्तान के आइनी हकूक़, मुआशी हकूक़ और उनके अवाम के सेहत और ज़िंदगी का जो ख़तरा है वो PTI की हुकूमत की तरफ से है। और जहाँ NFC पे हमला हुआ है, 18th अमेंडमेंट पे हमला हुआ है, अब तो अख्तर मैंगल साहब के लिए इस सो कॉल्ड हुकूमत के साथ एलाय होना, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं बनता। और उम्मीद करता हूँ कि अख्तर मैंगल साहब अपना फैसला पे कायम रहेगा और बिल्कुल हम जब वो एलाय भी है तब भी हम मिलकर काम करने को तैयार है। अगर वो एलाय नहीं होता हम और भी मिलने को काम करने को तैयार होंगे, लेकिन इस वक्त सबको मिलके काम करना चाहिए। जहाँ तक वज़ीर आज़म का ट्रिप है, एक तो उसने तो वो डेरों से भी नहीं मिला लड़काना में, उन्होंने शायद एक कॉन्ट्रैक्टर से मिला। वहाँ का कोई सियासतदान या सियासत का हमारे साथ हो या मुखालिफ हो, पता नहीं क्यों, अच्छा होता अगर मिलता। लड़काना भी पाकिस्तान का हिस्सा है और अगर वज़ीर आज़म किसी शहर में जा रहा है तो हमारा यंग डॉक्टर्स, मेडिकल एसोसिएशंस वहाँ बहुत परेशान हैं, जैसे हर पूरा पाकिस्तान में परेशान है। वहाँ के सियासतदान से मिलता, अपने ही एलाइज से मिलते तो it would have made sense। और जो हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारा सेहत के निज़ाम से, हमारा डॉक्टर्स के लिए हमारा कोविड और लोकस का मसला लड़काना में जा रहा है, वहाँ हमारा मसला रहा है। लोकस के लिए कुछ ऐसा ऐलान करेगा, कुछ किसी चीज़ पे कोई सपोर्ट हमारे अवाम को नहीं मिला। हमारा टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स वहाँ हैं, स्ट्रेस में है, वैसे स्ट्रेस में होते हैं। कोविड जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको ना सिर्फ लड़काना से लेकिन थोड़ा इर्द गिर्द के इलाकों से भी वहाँ आना पड़ेगा। हमारा अपना वसाइल हम खर्च कर रहे हैं, अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वफाक सपोर्ट करता, हर सूबा को सपोर्ट करता तो ज़्यादा लोगों को मदद दिया जा सकता, तो वो नहीं किया गया। उसको यहाँ आके अगर वज़ीर आला साहब से मिलता, हमारे वज़ीर सेहत से ब्रीफिंग लेता, शायद PTI की क़यादत को, इमरान खान को पता चलता कि सिंध में हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी वो पूरा रीजन में कैसे सबसे ज़्यादा है। इसलिए हम ना सिर्फ इंडिया को पीछे छोड़ते हैं, सिंध का टेस्टिंग कैपेसिटी इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से और हमारा पूरा मुल्क से भी आगे हैं। तो वो सीख लेते हमसे कि कैसे हमारा जो सेहतयाबी का रेट है, हमारा रिकवरीज का रेट है, वो बाकी प्रोविंसेस से आगे हैं। हमारे मिसाइल क्या हैं, हमारा सेहत के निज़ाम में हमें इनका जिम्मेदारी होता है, लेकिन एक कठपुतली को, एक सिलेक्टेड को वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी का क्या पता, कायद होने की जिम्मेदारी का क्या पता, अपना काम का क्या पता। उसने अपना प्राइवेट ट्रिप पे आया, जैसे आपने कहा, ना डॉक्टर से मिला, ना नर्स से मिला, ना डेली वेज अर्नर से मिला, ना मजदूर से मिला, एक शानदार फीस करके वापस इस्लामाबाद चला गया। ये रिवायत इस वक्त का वज़ीर आज़म का, इस मौके का, इस चैलेंज का, it doesn't meet their expectations. बघेरी साहब जी, बेहतर इस्तेमाल तो शायद, बेहतर इस्तेमाल तो वन शो
जी, एक तो अब गलत हो हर लिहाज से। एक लिहाज से जी बिल्कुल, हर जगह पूरा पाकिस्तान में बेहतर होना चाहिए, हमें बेहतर काम करना चाहिए, बेहतर मेहनत करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमारा सिंध का सेहत पे फोकस रहा है, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अब से नहीं, पैंडेमिक में नहीं, लेकिन सालों साल हमने हेल्थ को प्रायोरिटी रखा है। इसकी वजह से सिंध में ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अपने नंबर्स दिखाता है कि सिंध में जो हॉस्पिटल बेड्स पर मिलियन है, बाकी सूबों से ज़्यादा है। सिंध में जो आईसीयू बेड्स पर पॉपुलेशन रेशियो है, बाकी सूबों से ज़्यादा है, पंजाब से ज़्यादा है। नया हॉस्पिटल्स जो सिंध में बने पिछले 10 साल में, सिंध में ज़्यादा नया हॉस्पिटल्स बने हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के नंबर्स के हवाले से, कंपेयर टू इवन पंजाब। नाउ आप डिबेट कर सकते हो कि उन हॉस्पिटल्स का क्वालिटी क्या है। उन हॉस्पिटल्स की क्वालिटी पूरा पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स है उनको बेहतर होना चाहिए। लेकिन जहां तक सिंध का परफॉर्मेंस है हेल्थ में, एक माइनस कोविड, आउटसाइड ऑफ कोविड, आपका अपना स्टेटिस्टिक्स, अपना मुल्क का डाटा ये दिखाती है कि सिंध ने आउट परफॉर्म किया है और आज भी आउट परफॉर्म कर रही है, चाहे वो टेस्टिंग कैपेसिटी में हो, चाहे वो हमारा फैसिलिटीज पे कैपेसिटी में हो। दूसरा, आप पूछ रहे हो कि क्या वो जो निज़ाम है उसमें वो ओवरवेल्म नहीं हो पा रहा है। वो तो होगा। अब पूरा मुल्क में जितना तेजी से हम इजाफा करते हैं, हमारा सेहत का निज़ाम ये बोझ नहीं उठा सकती। हमें ये पहले पता था, इसलिए हमने मुतालबा किया कि फौरन जंगी बुनियादों पे आप लॉकडाउन सिर्फ लॉकडाउन के लिए ना करें, लॉकडाउन के दौरान जंगी बुनियादों पे हेल्थ केयर कैपेसिटी में इजाफा करें, लॉकडाउन के दौरान जंगी बुनियादों पे टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करें। हमने वो नहीं की। अब हम इजाफा करते रहेंगे, टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा भी करते रहेंगे, सेहत का निज़ाम में भी इजाफा करते रहेंगे, लेकिन हम उस वायरस के साथ वो पेस, अगर हम WHO के रिकमेंडेशंस को नहीं मनाते हैं, कोशिश भी नहीं करते हैं, सो देयर इज नो वे कि हम उस वायरस के साथ पेस रख सकेंगे। ये एक मुश्किल हकीकत है और हमें बहुत गौर करना चाहिए। जो भी माजी में किसी का अप्रोच था, अब जो WHO का गाइडलाइंस है वो आपको बताता है कि आपको कौन सा थ्रेशोल्ड पे आना है लॉकडाउन को उठाने से पहले। जो हम मुतालबा कर रहे थे कि आपका सेहत का निज़ाम का कैपेसिटी, आपका टेस्टिंग कैपेसिटी, आपको इतना टेस्टिंग कैपेसिटी होना चाहिए कि आप हर टेस्ट को टेस्ट कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो। जब आपका वो कैपेसिटी है, जब आपका इन्फेक्शन रेट 10% से कम है, या आई फॉरगेट व्हाट नंबर परसेंटेज से कम है, तो तब आप लॉकडाउन लिफ्ट कर सकते हो और इसको मैनेज कर सकते हो। और अब भी NCOC में, ऐसी मीटिंग्स में आपका वज़ीर आला WHO के गाइडलाइंस को, WHO का जो रिकमेंडेशंस है वो वफाक के सामने रख रहे हैं। इस फोरम जो उसको लीगल कवर भी है कि यहाँ से मिलके मुल्क का फैसला हो, उसमें ये डिबेट छेड़ा गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि WHO का गाइडलाइंस को इस्तेमाल करके हम अपना सेहत के निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। लास्ट क्वेश्चन नहीं करें तब। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूं। हमने जब ये वबा शुरू हुआ, हमने समझा कि बिल्कुल एक इम्पार्शल गैर पार्टिजान अप्रोच और मिलके इसका मुकाबला करें और हमारा रियल सीरियस कोशिश
کافی دیر سے رہا کہ جتنا یہ غیر سیاسی رہے، جتنا ہم آپس میں نہ لڑے، لیکن پی ٹی آئی کا وزیر اعظم کا بس وہ الگ نیت تھا، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نہ صرف اس وبا کا مقابلہ کرنے میں، اس وبا کو قابو پانے میں، مگر آپ کو معیشت کو سنبھالنے میں، آپ کے وفاق کو سنبھالنے میں، آپ کے بہت سے ایشوز کا جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس وقت ہمارا فوکس کووڈ ہے، عوام کا صحت اور زندگی بچانا ہے، معیشت میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک یہ گرتی ہوئی دیوار ہے انشاءاللہ تعالی یہ جلد گر جائے، اور ہمیں بس ایک قابل سیریس ایڈلٹ ملے جو وزیر اعظم ہو اور اتنا بچکانہ حرکتیں ایک پینڈیمک کے دوران نہ کرے، تاکہ یہ ملک چل سکے اور ہم اپنا عوام کی زندگی اور صحت کو بچا سکے۔ اس کا مخالفت تو نہیں کروں گا۔ آپ سب کا بہت مہربانی۔ آئی ایم سوری میں اتنا زیادہ اور کوشچنس انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔